Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for Grade 2. We are going to start Unit 5. Its title is Modes of Transport. I have divided this unit into different lectures. In lecture 1, under the title of Grammar, we will learn about describing words, and we'll cover page number 40 and 41 of your book. We'll cover the SLO to identify and match some pairs of describing words showing quality, size and color, and we learn about soft and hard, big and small, black and white. We'll write a few sentences to describe a picture and a series of pictures. In lecture 2, under the title of Grammar, we'll learn about question words. We'll cover page number 41 of your book, and we'll cover the SLO. Use questioning words: what, who, where, when, and why. In lecture 3, under the title of Grammar, we'll learn about requests and commands. We'll cover page number 41 and 42 of your book, and we'll cover the SLO to use and respond to simple sentences showing request and command, both physically and in speech. In lecture 4, under the title of Pronunciation Skills, we'll read and write 2 to 3 syllable words. We'll cover page number 39 of your book, and the SLO will be to read aloud words and simple sentences. Our focus will be words. In reasonable level of accuracy in pronunciation, write simple 2 to 3 syllable words with correct spelling. Leave spaces between words. We'll practice in sentences. So, in lecture 5, we will read and understand the text, and we'll cover the page number 36, 37, and 38 of your book, and SLO is to read aloud words and simple. Here we will focus on simple sentences. Words we will focus in lecture 4, and sentences will focus in lecture 5 with a reasonable level of accuracy in pronunciation. In lecture 6, we'll again continue reading and understanding the text, page number 36, 37, and 38 of your book, and we'll cover again the SLO to read aloud words and simple sentences with reasonable level of accuracy in pronunciation, and we'll also take dictation of familiar words learned in the class. Lecture 7, under the title of Read and Think, we'll locate time in a clock by hour hand, page number 42 and 43 of your book, and the SLO will be to locate specific simple information in a clock by the hour by looking at the position of hands of the clock. Lecture 8, under the title of Writing, we will learn to describe a picture and a series of pictures. We'll cover page number 43 of your book, and the SLO will be to write a few sentences to describe a picture and a series of pictures. So in this way, we'll complete the lesson, and now it's time to understand the lesson. Its title is Modes of Transport, and its theme is travel and transport. Its sub-theme is different modes of transport. Right? Yes, my dear children. Actually, ये जो इसका theme है travel and transport. आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या करेंगे? आपके पास बहुत सी चॉइसेस होती हैं, उनमें से किसी भी एक चॉइस को आप अवेल करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट. आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो वो कहलाता है ट्रैवल. आप ट्रैवल करना चाहते हैं, और जिस ज़रिए को आप अपनाते हैं वो आपका ट्रांसपोर्ट कहलाता है. ठीक है, इस लेसन में हम डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि सबसे पहले है लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि वो ज़रिए जिससे आप ज़मीन के ऊपर ट्रैवल करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप ज़मीन का रास्ता इख्तियार करते हैं. और वो क्या है? पहले तो शुरू के टाइमों में लोग पैदल चला करते थे. एंड कैन यू बिलीव के लोग काफिला का वर्ड आपने सुना होगा, बड़े बड़े ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी कि वो इकट्ठे होकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैदल जाया करते थे, कई कई महीने पैदल चलते रहते थे. सो इट वाज इंटरेस्टिंग, और उसके लिए बहुत सी बेटा प्लानिंग करने की ज़रूरत. ये नहीं आप उठते हैं और चल पड़ते हैं, आपको पूरा प्लान करना पड़ता है, कितने दिन का रास्ता है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, और वो सारी आप साथ कैरी करते थे और फिर मूव करते थे. ये पुराना तरीका था. अभी हम
वॉक ऑन फुट करते हैं, लेकिन फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस. पहले लोग बड़े बड़े डिस्टेंसेस के लिए भी वॉक ऑन फुट करते थे. उसके साथ दूसरी चीज़ जो यूज़ किया करते थे वो थे एनिमल्स, हॉर्सेस, डोंकीज, कैमल्स, क्योंकि इफ़ दे हैव टू कैरी वेट्स, उनके पास अगर सामान है तो सामान उठाकर चलना इज़ डिफ़िकल्ट. वो क्या करते थे, अपने सामान को एनिमल्स के ऊपर लोड करते थे और उनके साथ पैदल चलते थे. अभी अगर आप जाएं हमारे जो हिली एरियाज़ हैं ख़ास तौर पे, तो अभी भी आपको नज़र आएंगे वहाँ एनिमल्स दे यूज़ टू कैरी लोड्स, और वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी आपको चढ़ते हुए नज़र आते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि आपकी जो आ गई, क्या इसको कहते हैं, व्हीकल्स, यानी कि आपकी बस, वैन, कार, ये सारी चीज़ें जो रोड के ऊपर चलती हैं. और साथ में हैं ट्रेन्स. ट्रेन्स क्या होती है, ये रोड के ऊपर नहीं चलती, इसके लिए एक ट्रैक चाहिए होता है जिसको रेल की पटरी कहते हैं. आपने देखी है अगर तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जब भी आप जाएं तो देखें कि वो एक स्पेशल उसका ट्रैक बना होता है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है. तो जैसे ही ये व्हीकल्स आपके और ट्रेन की आपको सहूलत मिली, तो आपका जो ट्रैवल है, आपका जो सफ़र है वो तेज़ हो गया. इट मेक योर ट्रैवलिंग क्विक एंड फास्ट. उससे आपका सफ़र, यानी अगर आप पैदल चलते हैं या कोई स्लो ट्रांसपोर्ट लेते हैं, वो आपको ज़्यादा टाइम में पहुंचाती है. अगर आप तेज़ ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो आपको जल्दी पहुंचाती है. ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप रोड के ऊपर अगर जाते हैं, एक बस से जा रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, और वो आपको फॉर इंस्टेंस आपका जो ट्रेवल टाइम है वो 5 आवर्स है, तो हो सकता है ट्रेन में वही सफ़र आप 3 घंटे में तय कर लें. दिस इज़ हाउ आपका ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंगली प्लान करना होता है. अगर आपने जल्दी पहुंचना है तो आपको क्विकर ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है. और अगर ट्रेन से भी जल्दी पहुंचना है तो व्हाट टू डू, वो भी आपकी बुक में नेक्स्ट में बताया गया है. पहले है जी वाटर ट्रांसपोर्ट. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ उन्होंने बताई है कि ये जो फास्ट आपके ट्रांसपोर्ट है ना, इसने बहुत ज़्यादा आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चेंज किया है. व्हाट आई से, सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नहीं, हमारे पूरे लाइफस्टाइल को चेंज किया है. पहले के दौर में जब ट्रांसपोर्ट, अब तो देखें इसी ट्रांसपोर्ट से हमें चीज़ें भी मिलती हैं. अब कितना आसान है कि हम अपने शहर में बैठे हुए दूसरे शहर की, बल्कि दूसरे मुल्कों की चीज़ें भी हमें अवेलेबल हैं. वो किस वजह से है, इसी ट्रांसपोर्ट की वजह से, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे ज़राए मौजूद हैं जिससे वो चीज़ें आसानी से हमारे पास पहुँच जाती हैं. The other ways, वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या है, बोट्स हैं, ये स्मॉल बोट्स जिसको उर्दू में कश्ती कहते हैं, और ये आपके शिप्स हैं जिनको बहरी जहाज़ कहते हैं. ये क्या करते हैं, ये वाटर में आपके जो समंदर है उसमें बाकायदा इनके भी ट्रैक्स बने होते हैं. ये ऐसे नहीं है कि कहीं से भी चल पड़ते हैं, इनके ट्रैक्स बने होते हैं. ये एक सिटी से दूसरी सिटी या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोगों को भी और चीज़ों को भी लेकर जाते हैं, ठीक है. और इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस और इट हैज़ बिकम शॉर्ट. क्योंकि ये देखें कुछ ऐसी लोकेशंस है, अगर कभी आप मैप देखें, कुछ ऐसे मुल्क हैं कि उनके दरमियान रोड बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके दरमियान एक बड़ा सा समंदर आता है. तो फिर वो जो समंदर का रास्ता है उसी के ज़रिए सारी आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्ट होती है, लोगों का आना जाना या चीज़ों का आना जाना, वो उसी रास्ते से पॉसिबल है. तो अगर ये रास्ता हमारे पास ना हो तो वो मुल्क जहाँ पर रोड नहीं बनती, हम ना वहाँ जा सकते हैं ना वहाँ से चीज़ें ला सकते हैं. राइट, दिस इज़ हाउ दिस हैज़ हेल्प्ड अस. नेक्स्ट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट. एंड एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स हर वो चीज़ जो आपको हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह और आपकी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है. उसमें क्या है, उसमें एरोप्लेन्स हैं, उसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट हैं, मैनी थिंग्स. सो here they have mentioned the third mode of transport is air. Aeroplane help the people move fast. ये अभी तक जो हम जितनी भी ट्रांसपोर्ट की बात की है, एरोप्लेन सबसे ज़्यादा फास्ट है. So traveling has become faster through the air. Aeroplanes are the fastest mean of transport. इसका मतलब है कि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपके पास सारे मीन्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी, आप रोड से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं और प्लेन से भी जा सकते हैं. तो अगर आपने क्विकेस्ट वे में पहुँच, सबसे जल्दी पहुँचना है, तो विच मोड यू शुड टेक, एरोप्लेन. ओके, और उसके बाद ट्रेन और उसके बाद आपकी कार या फिर बस. Do you understand? This is how these mode of transport help us. और आपको पता है ये mode of transport और traveling का जिक्र कुरान में भी है. Do you know that? I will show you the
verse. Allah says, Quran की surah number 6 और ayah number 11. Say, travel through the earth and see what was the end of those who rejected truth. Now, Allah Ta'ala हमें कह रहे हैं travel through the earth. Travel through the earth. अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे जाओ जाके घूमो फिरे सैर करो, अल्लाह ताला कह रहे सैर करो और गौर करो. तो बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी आप ट्रैवल करें किसी भी ज़रिए से, किसी भी ट्रांसपोर्ट से, तो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बहुत कीनली ऑब्ज़र्व किया करें. ये हमारे लिए सीखने का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं. और अगर आप ऑब्ज़र्व करें, देखें आप यहाँ पर हैं, यहाँ जो वही सॉइल मिट्टी है ना, उसमें आप एक बीज बोते हैं, तो आपको अमरूद का या क्या कहते हैं ये और कौन से हमारे दरख्त है, अमरूद है, अनार है, आम है, यहाँ पे आप उसी सॉइल से उगाते हैं. जब हिली एरिया में जाते हैं तो उसी सॉइल से आड़ू और सेब और खुबानी उग रहे हैं. तो देखें ये चीज़ें ट्रैवल का असल में मकसद, जब भी आप जाते हैं तो ये ऑब्ज़र्व करें और आपको अल्लाह ताला की निशानियाँ हर जगह मिलती हैं और फिर आपको पता चलता है कि हाउ ग्रेट आर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़, और अल्लाह ताला ने कितनी हमारे ऊपर अपनी रहमतें रखी हैं. तो जब भी आप ट्रैवल करें, और एक चीज़ और जो कि सुनना है, जब भी ट्रैवल करें दुआ ज़रूर मांगें, क्योंकि सफ़र में की हुई दुआ बहुत मकबूल होती है. तो दैट्स इट. ये मैंने चीज़ें आपको आज बतानी थी. इनको जहन में रखें. जब हम लेसन पढ़ेंगे तब भी इन चीज़ों को आपने अपने ब्रेन में रिकॉल करना है और फिर बहुत से कनेक्शंस इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आएंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अब कल से हम इंशाल्लाह इस लेसन का लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे अपने ग्रामर पोर्शन से. टिल द टाइम कीप थिंकिंग, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.